Assalamu alaikum students, welcome back to our lecture of analytic geometry. Today we are going to learn about ellipse. Ellipse is basically a 2D or a plane shape obtained by the intersection of a right circular cone with the plane. We already discussed details about the cone, formation of the cones and different types of the cones and how we call it right circular cone and real life examples of the parabola and the circle and different interesting facts related to the circles and parabola. We also discuss about their equations and their different types of the parabolas and circle. Now we are going to discuss first of all our lecture outline, how ellipse is formed. First of all, how ellipse is formed, then we discuss the real life examples of the ellipse in medicals and different other interesting applications of the ellipse, where we will discuss about axes, vertices, latest atom of the ellipse. There are different parts of the ellipse basically. Then we derive the equation of the ellipse. We also discuss two possible forms of the ellipse, and then we discuss about the standard form of the equation of the ellipse with the vertices h and k. First of all, how ellipse is formed. When a right circular cone intersection with the plane, then different types of conic section obtained depending upon the orientation of the plane. Ellipse is formed when a plane intersecting one nape of the cone at a right angle to the axis. Axis is a line which is passes through the vertex. This is the vertex where two napes join each other, and axis is the line passes through the vertex. And when a plane intersecting one nape of the cone at some angle of the to the axis, then the shape obtained is called ellipse. We get a shape given here in this picture, a shape like this, and this is called the ellipse of the. Now, definition of the ellipse. The ellipse is the locus of the point in a plane such that the sum of the distance from two fixed points is a constant fixed distance. Here two things are very important. First thing is the two fixed points, and the sum of the distance from two fixed point is a constant distance, or in other words we can say that a fixed distance from a two fixed points are this f and g are the two fixed point, and sum of the distance of all points of the ellipse is a constant distance. We can see that a distance from f pf and pg is a constant distance. We can write that fp plus pg, the sum of the distance is constant, and these two fixed points are called the foci. The foci is basically a plural of the focus of the ellipse. These two fixed point foci. Now we move towards the real life applications of the ellipse. Many real life situations can be represented by ellipse, including orbits of planets. Here we can see that the orbits of planets are. Many real life situations can be represented by ellipse, including orbits of the planets. Here the orbits of the planets as given here. There are elliptic orbits, moons, and shapes of the Botki's. Shapes of the Botki's given here. We can see that the Botki shape keels are elliptic shapes, and rudders and some airplane wings are the. We can see that the wings of this airplane is also of the elliptic form. Next application of in medical, it's a very important application. A medical device called lithotripter used elliptic reflectors to break up kidney stones. Here this is a device called lithotripter, and they generate sound waves. This device generate basically sound waves, and their orientation is the elliptic form, and the form of these sound waves are elliptic, and they used to break a stone in the kidney. Next example is very interesting example of ellipse. Some buildings called whispering chambers, designs with the elliptic domes. Whispering chambers, and here we have an elliptic dome, are designed with the elliptic dome so that a person whispering at one focus can easily be heard by someone standing at the other focus. Some whispering chambers are designed in elliptic domes basically. A person who's standing at this focus f can
speak, and a person standing on the other focus can hear by easily due to the reflecting. The reason behind this is given here. This occur because of the acoustic property of the ellipse. When a sound waves originated at one focus of the whispering chamber, the sound waves will be reflect off the elliptic dome and back to the other focus. Basically, when a person speak standing at one focus of the ellipse, then due to the sound waves whispering and they reflect by the elliptic dome. This is an elliptic dome, and then a person standing on the other focus can easily hear the voice who is out from the first focus F, and second person standing at the F dash due to the acoustic property of the ellipse. बेसिकली इसमें हमारे पास ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी एक फोकस पे कोई भी पर्सन जो है वो विस्परिंग अगर करता है, तो ये इलिप्टिक डोम्स जो है ये इसलिए बनाई जाती हैं कि इलिप्स की जो है वो इकोसिटी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वजह से जो दूसरे फोकस पे है ये रिफ्लेक्ट होकर वॉइस जो है वो क्लियरली वहाँ पर जो है वो दूसरे फोकस पे ये सुन सकते हैं। और इस तरह की जो हम लोग चैम्बर्स बनाते हैं इनको विस्परिंग चैम्बर्स भी कहते हैं। ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है एलिप्स की। अब हम मूव करते हैं कि एलिप्स के जो डिफरेंट जो हैं टर्मिनोलॉजीज़ जो एलिप्स में यूज़ होती हैं वो क्या क्या हैं। सेंटर एंड मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ द एलिप्स क्या है। जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया है कि फोकस जो हैं वो एलिप्स के वो दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं, ये जैसे एफ और जी हमने दो फोकस ले लिए हैं इस एलिप्स के फोकस वो दो फिक्स पॉइंट होते हैं जिसकी हमने डेफिनेशन ऑफ एलिप्स में पढ़ा कि जिनसे डिस्टेंस जो है एलिप्स के पॉइंट्स का सम ऑफ डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, इन दो फोकस से। और यहाँ पर फोकस हमने एफ और जी ले लिए हैं। अब सेंटर क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोसाई ऑफ द सेंटर ऑफ द एलिप्स। बेसिकली जो मिड पॉइंट होता है हमारे पास दोनों फोकस का, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द एलिप्स। अब नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आ रही है वो है मेजर एक्सिस। हमारे पास इससे पहले जो हमने देखा था जैसे पैराबोला में देखा और सर्कल में देखा, उन दोनों में सिर्फ हमारे पास एक ही एक्सिस था। लेकिन एलिप्स में जो है हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक मेजर एक्सिस होगा और एक होगा माइनर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस कौन सा है? अ लाइन सेगमेंट थ्रू द फोसाई ऑफ द एलिप्स इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस। ऐसी लाइन जो फोसाई से हमारे पास पास कर रही होती है उस लाइन को हम क्या कहेंगे कि ये इस एलिप्स का जो है वो मेजर एक्सिस है। और ऐसी लाइन जो सेंटर में से पास कर रही होती है और जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, ऐसी लाइन को हम कहते हैं कि ये इसका माइनर एक्सिस है। तो पिक्चर में ज़रा हम देख लेते हैं कि मेजर एक्सिस हमारे पास कहाँ है। मेजर एक्सिस हमारे पास ये एक लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन पिंक में हमने शो करवाई है जो दोनों फोकस से पास कर रही है हमारे पास एफ और जी से, इससे लाइन जो पास कर रही है हमारे पास होगी मेजर एक्सिस। और ऐसी लाइन जो सेंटर से पास कर रही है, अब सेंटर क्या है? सेंटर ऐसा पॉइंट था जो मिडवे होगा दोनों हमारे पास फोकस के, तो ये पॉइंट हमारा सेंटर है। तो सेंटर में से जो लाइन पास करेगी और जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, ऐसी लाइन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास माइनर एक्सिस है। तो होगी हमारे पास टर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्टेक्स और इसमें माइनर एक्सिस क्या है। बेसिकली अब हमारे पास इसमें वर्टिसेस जो हैं वो भी एक से ज़्यादा आ रहे हैं। पहले तो हमारे पास सर्कल और अगर हम पैराबोला की बात करें तो उसमें भी हमारे पास सिर्फ एक ही वर्टेक्स आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो वर्टेक्स जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। द एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। बेसिकली जो हमारे पास एंड पॉइंट्स मेजर एक्सिस के होते हैं इनको हम इन दोनों पॉइंट्स को वर्टिसेस कहते हैं। और जो एंड पॉइंट्स जो हमारे पास माइनर एक्सिस के होते हैं, ये जैसे सी और डी हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं माइनर एक्सिस के, तो इसको हम कोवर्टिसेस कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास मेजर एक्सिस क्या होता है? जो फोकस में से पास कर रहा हो। माइनर एक्सिस जो सेंटर में से पास कर रहा हो। और मेजर एक्सिस के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। अब हमने वर्टिसेस क्या है? वर्टिसेस हमारे पास दो तरह के आएंगे। एक तो मेजर एक्सिस जहाँ पर एक्सिस और लिप्स को कट करता है, ए और बी पे ये मेजर एक्सिस कट कर रहा है तो ये दोनों इसके वर्टिसेस है। और सी और डी पे जो एक्सिस माइनर एक्सिस जो है ये भी लिप्स को कट कर रहा है तो ये इसके कोवर्टिसेस होंगे हमारे पास।
अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ द एलिप्स, ये लेंथ जो है, जो हम दो एक्सिस कह रहे हैं, इनकी लेंथ क्या होगी। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, यहाँ पर हमने जो है ये ओरिजिन पे इसका सेंटर लिया हुआ है, तो ये बेसिकली इस ओरिजिन से लेकर हमारे पास यहाँ तक जो है ये लेंथ ए है। इसी तरह अगर माइनर पे देखें तो ये लेंथ हम बी ले रहे हैं। तो टोटल लेंथ जो अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टोटल लेंथ कितनी है, तो वो हमारे पास टोटल लेंथ तो है वो आ जाएगी मेजर एक्सिस पे 2a। इसी तरह अगर हम माइनर एक्सिस पे टोटल लेंथ देखना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगी 2b लेंथ आ जाएगी। ओके, और सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो हमारे पास स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये लेंथेज है हमारे पास सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस की। अब नेक्स्ट हम एक रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। बेसिकली हम इक्वेशन ड्राइव करना चाह रहे हैं एलिप्स की, तो उसमें हमें कुछ रिलेशनशिप जो है वो यूज़ होने हैं, उसको हम पहले ही फाइंड कर लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। अब हमने दोनों फोकस का सेंटर ऑफ एलिप्स से डिस्टेंस जो है वो एक तो ये फाइंड करना है और दूसरा हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। सबसे पहले हम एक पॉइंट जो है पी कंसीडर कर रहे हैं एट द एंड ऑफ मेजर एक्सिस के एंड पे, और ये हमने एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट जो है पी कंसीडर कर लिया है। ये पी पॉइंट हम द फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास पी पॉइंट है, ये एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट है, और ये हमने पॉइंट कहाँ पर लिया है, एट द एंड ऑफ मेजर एक्सिस। अब नेक्स्ट जो है हमने दो फोकस ले लिए हैं, वो हमने कौन कौन से लिए हैं, ये एक हमारे पास फोकस आ गया है एफ वाला फोकस, और सेकंड फोकस है हमारे पास जी। ये हमारे पास दो फोकस आ गए। अब इनके जो है हमारे पास, अब इन्हें सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू द फोकस, बेसिकली हम जो है सम ऑफ डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं इस पी वाले पॉइंट से दोनों फोकस का। इट मीन्स कि हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, पहले दोनों फोकस का इस पी वाले पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा। अगर हम फर्स्ट फोकस हमारे पास क्या है, एफ है, तो एफ का पी से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, एफ पी होगा। ये हमारे पास एफ है और ये पी तक ये डिस्टेंस हम देखना चाह रहे हैं। और सेकंड जो डिस्टेंस है हमारे पास, वो हमारे पास जी वाला फोकस है, तो जी से लेकर पी तक डिस्टेंस, दोनों फोकस का जो डिस्टेंस है इस पी वाले पॉइंट से, उसका हम सम फाइंड करना चाह रहे हैं। अब हम नेक्स्ट थिंग देखते हैं कि हमारे पास एफ पी की पूरे की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो एफ की पी को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी एफ से लेकर पी तक हमारे पास, ये हमारे पास एफ वाला पॉइंट है, ये हमारे पास पी वाला पॉइंट है। तो इसको हम अगर ब्रेक कर लें ओरिजिन पे, ये हमारे पास जो है सेंटर आ रहा है ओ, इस पर हम ब्रेक कर लें तो हमारे पास ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा कि एफ से पहले हम ओ की तरफ जा रहे हैं, फिर ओ से जा रहे हैं पी की तरफ। तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी जगह हमने लिखा है कि एफ पी जो है वो किसके इक्वल होगा, एफ ओ प्लस ओ पी। और नेक्स्ट टर्म जो है जी पी, वो तो हमारे पास एज इट ही आ गई है, हमने लिख लिया कि ये जी पी हमारे पास सेकंड जो फोकस था उसका पी वाले पॉइंट से डिस्टेंस। अब एफ से लेकर ओ तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, एफ से लेकर बेसिकली जो ओ तक वाला डिस्टेंस आ रहा है ये हमारे पास एफ था, और यहाँ से लेकर ये ओ तक जो डिस्टेंस है ये हमने ये लिखा हुआ है, ये स्मॉल सी है। और अब इस ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस जो है ये हमने देखना है कि ये हमारे पास क्या आता है। एफ से ओ तक तो हमने देख लिया कि स्मॉल सी है, और ओ से लेकर नेक्स्ट पी तक। अब हमने पीछे भी देखा था कि हमारे पास जो है सेमी मेजर एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो ए होता है, तो वो हमारे पास फर्स्ट वाला तो हमने लिख लिया कि सी है, जो हमारे पास किसके इक्वल, एफ ओ वाला डिस्टेंस है। सेकंड डिस्टेंस जो है वो ओ पी डिस्टेंस है, और ओ पी जो है वो ए के इक्वल है। ये हमारे पास यहाँ से लेकर ओ से लेकर पी तक वाला डिस्टेंस है, ये ए के इक्वल है। और थर्डली हम देखते हैं कि जी से लेकर पी तक वाला डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है। अब ओ से लेकर पी तक टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास ए है, और जी से लेकर पी तक वाला डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। और अगर हम देखें कि फोकस तक, ओरिजिन से लेकर जो फोकस तक डिस्टेंस था, यहाँ से हमारे पास ओरिजिन से लेकर जो फोकस तक डिस्टेंस था ये सी था, और टोटल डिस्टेंस ए था। और अगर हमने यहाँ से जी पी की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें यहाँ से लेकर ए पी तक वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये हमारे पास इक्वल होगा ए माइनस सी के। तो इस जी पी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई ए माइनस सी। अब इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सी वाली टर्म्स जो हैं वो तो कैंसिल होगी और ए हमारे पास ऐड हो गया। तो इट मीन्स कि ये जो दोनों फोकस का पी वाले पॉइंट से डिस्टेंस था और इसका जो सम हम ले रहे थे ये किसके इक्वल आ गया है, 2a के। टेक अ पॉइंट Q ऑन वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। अब एक हम पॉइंट जो है वो Q को डिस्कस करने लगे हैं, जिसको हमने
एक माइनर एक्सिस के एंड पे लिया है। पहले हमने मेजर एक्सिस के एंड पे लिया था, माइनर एक्सिस के एंड पे लिया है, और हमने सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट क्यू टू द फोसाई। अब दोनों फोकस से हमने जो है इस क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो क्या आ जाएगा, ओ पी, ओ क्यू एंड जी क्यू। ये हमने दो डिस्टेंस जो है अभी हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि जी और एफ जो है ये हमारे पास फोकस है, दो फोकस है हमारे पास, और क्यू हमारे पास एक पॉइंट हमने माइनर एक्सिस पे ले लिया। अब ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अब ये डिस्टेंस कैसे आएगा हमारे पास, यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली अप्लाई किया है। यहाँ हमारे पास बेस जो है वो सी है, और जो परपेंडिकुलर है जो हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस का डिस्टेंस था, जैसे हमने पीछे देखा कि ये हमारे पास बी था, तो इन दोनों को अगर हम स्केयर करके ऐड कर दें तो हमें हाइपोटेन्यूस जो है वो आ जाएगा, वो किसके इक्वल होता है, पैथागोरस थ्योरम जो है वो हमें ये कहता है कि हमारे पास जो है हाइपोटेन्यूस स्केयर जो है वो इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर होता है। तो अगर हम इसका अंडर रूट फाइंड कर लें तो ये हमारे पास डिस्टेंस जो है ये बी स्केयर प्लस सी स्केयर के इक्वल आ गया। सिमिलरली जो है ये दूसरा डिस्टेंस भी हमारे पास क्यू जी का ये भी बी स्केयर प्लस सी स्केयर के इक्वल आ गया। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 स्केयर रूट बी स्केयर प्लस सी। अब हमें पता है कि एलिप्स की डेफिनेशन अगर हम यूज़ करें तो एलिप्स की डेफिनेशन ये कहती है कि एलिप्स पे अगर हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो उसका जो सम ऑफ डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है कि ये जो हमने एफ पी वाला डिस्टेंस हमने फाइंड किया था, ये एफ पी प्लस जी पी जो है ये इक्वल होना चाहिए किसके, एफ क्यू प्लस जी क्यू के, क्योंकि दोनों पी भी एक एलिप्स पे पॉइंट है और क्यू भी एक एलिप्स की हमने पॉइंट है। और एलिप्स की डेफिनेशन में क्या कहती है कि एलिप्स एक ऐसी शेप है जिसका फोकस से सम ऑफ डिस्टेंस जो है वो सेम होता है। तो इट मीन्स अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से हमें एक रिलेशनशिप मिल जाता है। वो रिलेशनशिप हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा। अब एक तो हमारे पास ये आ गया था जो हमारे पास जी एफ क्यू और जी क्यू के सम करने से आया था, और दूसरा डिस्टेंस जो एफ पी और जी पी के सम करने से आया था वो था 2a। तो ये दोनों हमारे पास इक्वल हो गए बाय डेफिनेशन ऑफ द एलिप्स। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू अंडर रूट बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अब इसको हम दोनों साइड पे इसकी स्केयरिंग करनी है बेसिकली, तो हमारे पास आ जाएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अब ए और बी की वैल्यूज़ तो हमें पता होती हैं कि जो मेजर एक्सिस का और जो माइनर एक्सिस की जो लेंथ है सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस की, वो जो है हमारे पास ए और बी होती हैं। लेकिन सी की वैल्यू में फाइंड करने के लिए ये सारा रिलेशनशिप जो है वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ा। तो इट मीन्स कि सी की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर करके, और इसका हम स्केयर रूट ले लें तो हमारे पास ये जो सी है जो कि डिस्टेंस था ओरिजिन का फोकस से, तो ये हमारे पास डिस्टेंस ऑब्टेन हो जाएगा इस रिलेशनशिप को यूज़ करके। ये रिलेशनशिप अब हमने इसकी डेरिवेशन कर लिया, तो नेक्स्ट हम ये रिलेशनशिप ही यूज़ करेंगे, सी इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। अब अपनी मेन डेरिवेशन की तरफ आते हैं जो हम इस इक्वेशन ऑफ एलिप्स की करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमने वही दो चीज़ें जो हैं वो कंसीडर कर लेते हैं कि दो हमने फोकस ले लिए हैं, एफ और जी। ओ जो है वो हमने इनका मिड पॉइंट ले लिया है जो कि सेंटर ऑफ द एलिप्स होगा, और एफ जी लाइन जो है ये दोनों फोसाई को जो लाइन बना रही है उसके सेंटर में जो पॉइंट होता है वो सेंटर होता है हमारे पास एलिप्स का, तो उसको हमने ओ कंसीडर कर लिया है, ओरिजिन है। अब जो है हम देखते हैं कि ये डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे। जैसे कि हमने देखा है कि प्रीवियस स्लाइड में कि ओरिजिन से लेकर जो फोकस तक वाला डिस्टेंस होता है वो सी होता है, इसी तरह ओरिजिन से इस फोकस तक का भी डिस्टेंस सी है। तो अब हमने 0 0 हमने ओरिजिन ले लिया है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एफ़ और जी के वो हमारे पास क्या आ जाएंगे। सबसे पहले जी का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। जी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएंगे, जी का एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो सी आ जाएगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है पॉइंट, तो इसका वाई वाला कोऑर्डिनेट जो है वो तो 0 होगा, तो ये हमारे पास जी के कोऑर्डिनेट आ गए। सिमिलरली जो है एफ़ का भी वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा, और एफ़ का एक्स वाला कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास माइनस सी होगा क्योंकि ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और वहाँ हमें पता है कि सी जो है वो एक्स जो है वो नेगेटिव होता है। तो एक्स का कोऑर्डिनेट जो है जब हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होंगे तो वो हमारे पास हो गया नेगेटिव। तो ये सी कोमा 0 और माइनस सी 0 जो है ये हमारे पास आ गए कोऑर्डिनेट्स। और पी हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया है एलिप्स पे, पी जो है वो कोई भी पॉइंट है एलिप्स पे, इसके हमने कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक्स कोमा वाई कह दिए, ठीक है। और अब हमें पता है कि पी टू द साइड द टू गिवन। अब हमें पता है कि जैसे हमने अभी ऊपर रिलेशनशिप कंस्ट्रक्ट किया था कि अगर ऐसे हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो इसका सम ऑफ डिस्टेंस जो है वो हमारे पास आ रहा था 2a।
तो अब इसी रिलेशनशिप को हम यूज़ करने लगे हैं, जो भी हमने प्रूव किया था कि अगर हम ऐसे पी कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो उसका फोकस है जो सम ऑफ डिस्टेंस है वो आ रहा था 2a। तो इस रिलेशनशिप को यूज़ करेंगे और हमने एक डिस्टेंस फाइंड करना है पी एफ वाला और एक डिस्टेंस हमें चाहिए पी जी। अब ये यहाँ पर जो पॉइंट हमने लेबल किए हुए हैं इसकी वजह से हम ये डिस्टेंसेस जो है दो फाइंड करेंगे और इसका सम जो है वो लेंगे। अब सबसे पहले ये देखें कि इसमें हमारे पास हमने डिस्टेंस फाइंड करना था एफ़ का पी के साथ। अब एफ़ का पी से हमने अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये हमारे पास एफ़ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस सी स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब बात यह है कि ये हमारे पास डिस्टेंस आया कैसे। बेसिकली डिस्टेंस में हमने क्या करना है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है स्मॉल एक्स, और इधर हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस सी है। तो एक्स में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस सी तो वो हमारे पास एक्स प्लस सी जो है ये वाली टर्म हमारे पास बन जाएगी, एक्स प्लस सी वाली। अब अगर नेक्स्ट टर्म हम देखें कि इसके वाई वाली कैसे आई है। अब यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास स्मॉल वाई है लेकिन यहाँ वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, तो जब वाई माइनस जीरो करेंगे तो ये हमारे पास वाई स्केयर ही आ जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ गई। अब सेकंड टर्म की तरफ मूव करते हैं कि ये टर्म हमें कैसे मिली है। अब जी के कोऑर्डिनेट देखें सी ज़ीरो है और इधर पी के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स और वाई। तो अगर हम x में से c सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये फर्स्ट वाली टर्म आ जाएगी x माइनस सी होल स्क्वायर x कोऑर्डिनेट के लिए, और y तो ज़ीरो है g का तो y कोऑर्डिनेट, तो y माइनस ज़ीरो ज़ीरो जाएगा तो ये y स्क्वायर आ गया। अब ये तो डिस्टेंस हम पीछे से लेके चल रहे हैं कि ये 2a हमारे पास आता है। अब इसको हमने बेसिकली सिंप्लीफाई करना है तो ये हमारे पास अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो दोनों स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ रही हैं, तो इनका अगर हम स्क्वायर इसी तरह लें तो ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम एक स्क्वायर रूट वाली टर्म्स जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट करने लगे हैं, ये वाली तो ये इधर ऐड हो रही थी तो इस साइड पे हमारे पास आके क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब इसकी हम स्केयरिंग की है, हमने बोथ साइड्स की स्केयरिंग के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया है ए माइनस बी होल स्क्वायर का, वो किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला यूज़ करने के बाद हमारे पास जो है वो ये टर्म्स आ गई हैं। इधर तो स्क्वायर रूट से सिंपल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इधर हम देख लेते हैं कि ए की जगह हमारे पास 2a था तो इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर आ गया। इस टर्म का जब हमने स्क्वायर लिया तो इसका भी स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो ये हमारे पास टर्म आ गया एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमने लिया है 2a जो है वो हमारी फर्स्ट टर्म थी और 2 फार्मूले का जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास हो गया है 4a। ओके, अब अगेन जो है हमें इसको इस पोलिनोमियल को जो है हमने जो है ये हमारे पास थी बाइनोमियल, इसको हमने एक्सपेंड किया है स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करके, तो ये हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc। तो ये जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको हमने कैंसिल आउट कर लिया है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो हमारे पास टर्म फाइनल बन गई है वो है ये हमारे पास टर्म आ गई है। अब ये इन दोनों को हम स्टेप्स को जो है वो देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्टेप्स जो हैं कैसे बने हैं। अगर हम ये जो हमारे पास टर्म है स्क्वायर रूट वाली, इसको हम एक साइड पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास स्क्वायर रूट है तो हमें दोबारा स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसको हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया है। पूरी इक्वेशन को हमने 4a से जो है वो डिवाइड कर दिया है और इसको स्क्वायर रूट वाली टर्म को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारे पास इधर आ गई है। अब 4a से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे पास इसके साथ तो a नहीं था तो ये हमारे पास दे देगा क्या 4 तो कैंसिल हो जाएगा और ये cxa दे देगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव में है। तो इधर हमारे पास जो है वो ये 4a स्क्वायर है, तो इसके यहाँ से तो a भी कैंसिल हो गया है 4b, तो ये हमारे पास a आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट टर्म्स जो है वो इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर हम दोबारा से इसकी स्केयरिंग करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स जो है वो हमारे पास बन जाएगी। अब अभी जो हमने रिलेशनशिप कंस्ट्रक्ट किया था इसको मैंने आपको कहा था कि हम इसको जो है डेरिवेशन जो है लिप्स की उसमें यूज़ करेंगे कि सी स्केयर जो है वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल होता है। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर वाई स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस सी स्केयर। अब ए स्केयर माइनस सी स्केयर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास इस इक्वेशन को यूज़ करके बी स्केयर के इक्वल। तो फाइनली जो इक्वेशन हमें इस एलिप्स की मिल गई है जिसमें हमारे पास मेजर एक्सिस जो था वो एक्स एक्सिस था, माइनर एक्सिस हमने वाई एक्सिस लिया था और सेंटर हमने ओरिजिन 0 0 पे लिया था। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है एलिप्स की वो है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास फाइनली जो है जब एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है उसके लिए इक्वेशन आ गई है, और यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं कि ए स्क्वायर जो है वो हमारा ग्रेटर देन होगा बी स्क्वायर से,
इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी, क्योंकि ए की वैल्यू कहाँ से होगी, इस ओरिजिन से लेकर इस वर्टेक्स तक या इस वर्टेक्स तक जितनी भी हमारी लेंथ है वो बेसिकली ए है। तो ए जो है वो ग्रेटर देन जब होगा बी से, तो तब हमारे पास जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसकी जो है सेकंड पॉसिबल फॉर्म, इसकी इक्वेशन आप खुद से ड्राइव कर सकते हैं सिमिलरली इसी पैटर्न पे जैसे हमने फर्स्ट वाली की इक्वेशन जो है एलिप्स की ड्राइव की है। मैं इसकी डेरिवेशन की तरफ नहीं जाती। हम नेक्स्ट जो है इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी इक्वेशन देख लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन आई क्या है। यहाँ पर हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ गया एंड वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। जो हमारे पास मेजर एक्सिस होते हैं उसके नीचे हमारे पास जो है वो ए स्क्वायर होता है। तो ये हम देख लेते हैं कि अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो है वो क्या हमारे पास कंक्लूजन क्या आ रही है, इन दोनों इक्वेशन से हमने क्या ऑब्जर्व किया है। जैसे कुछ चीज़ें जो हैं वो फोकस वगैरह इसकी एक दफ़ा आप अच्छे से ये समझ लें कि इसके ये फोकस हमारे पास कैसे आ रहे हैं। देखें इसमें हमारे पास जो फोकस थे वो C0 थे और -C0 थे। अब यहाँ पर फोकस जो है ये वाई एक्सिस पे चले गए, क्योंकि मेजर एक्सिस हमारे पास वाई एक्सिस है, क्योंकि मेजर एक्सिस ऐसा एक्सिस होता है जो फोकस में से पास कर रहा हो। तो अब यहाँ पर हमारे पास मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 C और 0 -C आए हैं, क्योंकि पूरे के पूरे वाई एक्सिस पे एक्स की जो इक्वेशन है वो 0 होती है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ गया और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास C और -C आ गए हैं। अब इसके ये तो हो गए फोकस की बात हम कर गए। अब इसके अगर कोवर्टिसेस की बात करें तो कोवर्टिसेस हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहे हैं, B0 एंड -B0, क्योंकि हमें पता है कि जितनी माइनर एक्सिस या सेमी माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती है ओरिजिन से वो B होती है और मेजर एक्सिस की A होती है। तो ये चीज़ें आपने जो है वो मिक्स नहीं करनी दोनों की इक्वेशन की, इसको खास ध्यान रखना है। अब हमारे पास जो है फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लीव्स वी हैव द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली है कि फोकस जो है वो पहली बात तो ये कि फोकस हमारे पास कहाँ पर लाई करते हैं, मेजर एक्सिस पे, और मेजर एक्सिस कैन बी डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बेसिकली अगर हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री का इंटरसेप्ट फाइंड कर लें तो हम एक मेजर एक्सिस भी फाइंड कर सकते हैं कि मेजर एक्सिस कौन सा है हमारे पास, कि जोन सी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर होगी ए या बी, तो वो डिसाइड कर देंगे इसका मेजर एक्सिस जो है वो कौन सा है। मतलब अगर हमारे पास ए स्क्वायर जो है वो हम जो एक्स के नीचे अगर लिख रहे हैं और ए की वैल्यू ग्रेटर है तो वो हमें कंफर्म कर देगा कि इसका जो मेजर एक्सिस है वो क्या है, एक्स एक्सिस है। इस तरह अगर हम ए स्क्वायर वाई के नीचे पुट कर रहे हैं और ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है तो वो हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन दे देगी कि जो हमारे पास वाई एक्सिस है वो मेजर एक्सिस है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हैज़ द लार्जेस्ट डिनोमिनेटर। इसके लिए यही चीज़ें जो है यहाँ पर लिखी हुई हैं कि अगर एक्स एक्सिस का कोफिशिएंट जो है अगर उसका डिनोमिनेटर लार्जर है तो एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस होगा। इसी तरह अगर वाई स्क्वायर का जो है वो डिनोमिनेटर लार्जर है तो फिर हमारे पास वाई स्क्वायर जो है वो मेजर एक्सिस हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ और इसकी है कि एलिप्स जो है वो सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू बोथ कोऑर्डिनेट। जैसे हम पैराबोला और सर्कल की बात करते हैं कि वहाँ पर हमारे पास एक ही एक्सिस होता है और वो जो है पैराबोला और सर्कल जो है वो अपने एक्सिस की दोनों साइड्स पे हमारे पास जो है वो सिमेट्रिक होते हैं। अगर लेफ्ट राइट की बात करें तो जितना लेफ्ट पे होते हैं राइट पे, तो लेकिन एलिप्स में हमारे पास क्या है कि दो एक्सिस हैं, तो ये दोनों एक्सिस में जो है एलिप्स जो है वो सिमेट्रिक होता है। अगर वाई एक्सिस की लेफ्ट पे जितना होगा उतना ही वाई एक्सिस की राइट पे होगा। इस तरह अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो जितना एक्स एक्सिस से अपवर्ड एलिप्स होता है उतना ही एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड हमारे पास एलिप्स होता है। तो ये दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट से जो है एलिप्स जो है वो सिमेट्रिक होता है। अब एलिप्स की ग्राफिंग जो है वो हम ये थोड़ी सी देख लेते हैं कि ये हमारे पास सी स्क्वायर जो है ये डिस्टेंस हमने अभी देखा था कि ये हमारे पास किसके इक्वल आता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए जो है वो कितने यूनिट है, जितनी हमारे पास डायरेक्शन है एक्स वर्टिसेस आर ए यूनिट्स इन द एक्सट्रैक्शन में जितनी एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि एक्स एक्सिस में हमारे पास इसकी जितनी डायरेक्शन है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर ये वर्टिसेस तक, तो ये हमारे पास ए डिस्टेंस होता है। इस तरह ओरिजिन से लेकर कोवर्टिसेस तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास बी डिस्टेंस होता है। और अगर हम ओरिजिन से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस देखें तो वो डिस्टेंस हमारे पास सी डिस्टेंस है। ये हम स्टैंडर्ड नोटेशन हैं यही यूज़ करेंगे। अगर आप ये नोटेशन चेंज करते हैं तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप ए किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, बी किसके लिए और सी किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सी जो है वो डिस्टेंस है फोकस से, ए यूज़ कर रहे हैं जो सेंटर का डिस्टेंस है वर्टिसेस से, और बी हम यूज़ कर रहे हैं जो सेंटर का डिस्टेंस है कोवर्टिसेस से। कोवर्टिसेस जो है
वो एट द एंड ऑफ माइनर एक्सिस होते हैं और वर्टिसेस हमारे पास एट द एंड ऑफ मेजर एक्सिस होते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे हमने उसमें पैराबोला में देखा था कि लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास क्या होता था, एक ऐसी लाइन होती थी जो कि परपेंडिकुलर होती थी हमारे पास, वहाँ पे एक ही एक्सिस था तो उस एक्सिस के परपेंडिकुलर होती थी, और जो पासिस करती थी कि फोकस से पास करती थी, और जो लाई करती है एट द एंड ऑफ द एलिप्स, यहाँ बाउंड्री पे हमारे पास एलिप्स की। तो इसको इजी वर्डिंग में समझ लेते हैं कि लेटेस्ट रेक्टम जो है वो हमारे पास एक ऐसी लाइन होगी जो पहली बात तो ये है कि फोकस में से पास करेगी, ओके। और फोकस चूंकि मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि ये लाइन जो है वो मेजर एक्सिस की क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी। एक तो फोकस में से पास करेगी, दूसरा मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, और इस लाइन के जो एंड पॉइंट्स हैं वो हमारे पास एलिप्स की बाउंड्री पे जो है वो अपीयर होंगे। दोनों एंड पॉइंट ए और बी जो है लेटेस्ट रेक्टम के, ये एलिप्स की बाउंड्री पे हैं, ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो बेसिकली लेटेस्ट रेक्टम आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो फोकस हैं, तो ये दोनों हमारे पास जो है ये लेटेस्ट रेक्टम आ रहे हैं। दोनों की हमारे पास जो लेंथ है वो सेम ही होगी। अब नेक्स्ट जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, जब हमारे पास एच और के वर्टिसेस आएंगे तो तब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, जैसे हमने सर्कल और पैराबोला में किया था कि हम क्या करते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट से वो जो सेंटर वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सिमिलरली इस केस में भी हमारे पास यही हो रहा है कि हम क्या करेंगे कि एक्स पे से हम लोग जो है ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये एच और के जो है ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इस फॉर्म में हमने जब स्टैंडर्ड फॉर्म जब रीजन था वहाँ तो हमने समझ लिया था कि हमारे पास कोवर्टिसेस और वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान से ही देखना पड़ेगा कि कोवर्टिसेस और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपके पास क्या आ रहे हैं। अब हमारे पास जो सेंटर है वो एच और के है, हमने वर्टिसेस और कोवर्टिसेस और फोकस के हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए कि वो हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं। पहले जो हम ओरिजिन पे ले रहे थे तो फोकस तक डिस्टेंस हमें सी आ रहा था, तो वो उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास -C0 और C0 आ रहे थे। और अगर हम वर्टिसेस की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो आ रहे थे वो आ रहे थे A0 और -A0, और कोवर्टिसेस में हमारे पास 0B और -B0 आ रहे थे। लेकिन अब जब सेंटर चेंज हो गया है, सेंटर हमारे पास एच के पे शिफ्ट हो गया है, तो अब हम इसको समझते हैं कि हमारे पास क्या आते हैं। तो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले राइट मोस्ट पॉइंट जो है, राइट मोस्ट पॉइंट इसका हमारा कौन सा बनता है, एलिप्स का ये वाला पॉइंट बनता है। अब देखें कि इस पूरी लाइन पे बेसिकली ये जो मेजर एक्सिस है, इस पूरी लाइन पे अगर हम एक्स का कोऑर्डिनेट देखें तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास वेरी करेगा जैसे जैसे हम लोग जो है मूव करेंगे इस पे। लेकिन अगर हम वाई का कोऑर्डिनेट देखें तो वो इस पूरी लाइन पे जो है वो एक फ़िक्स वैल्यू ही होगी, और वो फिक्स वैल्यू हमारे पास क्या है, ये जो हम के ले रहे हैं, ये जितने भी हम इस पे पॉइंट ले रहे हैं अगर आप नोट करें तो इन सब में जो वाई कोऑर्डिनेट है वो के ही आ रहा है। कि इस पूरी लाइन पे जो है, इस पूरी लाइन की जो इक्वेशन है वो है एक्स इज इक्वल टू के है, तो वाई की जो वैल्यू है वो तो फिक्स हो गई है कि वो के ही आएगी। अब एक्स की वैल्यूज़ वेरी करनी है, और वो कैसे वेरी करनी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ तक ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस है ये हमारे पास पहले आता था A0। अब इसमें ये एच जो है, जो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास आया है, ये एच जो है ये इस ए में जो है वो ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला पॉइंट आ जाएगा जो राइट मोस्ट है। अब लेफ्ट मोस्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं। लेफ्ट मोस्ट वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास आता था -A, 0। अब 0 की जगह वाई कोऑर्डिनेट तो हमारे पास फिक्स हो गया कि वो क्या है। अब अगर हम एक्स को देखना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो रहा है कि H -A हो जाएगा हमारे पास। पहले सिर्फ -A था, अब हमारे पास जो है ये H -A आ जाएगा, तो ये लेफ्ट मोस्ट वाला पॉइंट आ गया। अब टॉप और बॉटम वाले पॉइंट्स जो हैं इनको देख लेते हैं, उसके बाद फोकस की तरफ जाते हैं। टॉप और बॉटम वाले पॉइंट पे अगर हम फोकस करें तो यहाँ पर अगर हमारे पास इस पूरी लाइन पे देखें तो ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये एच जो है ये फिक्स हो जाएगा इस पे। अगर इस लाइन के लिए देख रहे हैं तो ये एच हमारे पास जो है ये फिक्स है। ये देखें इस पूरी लाइन पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एच ही है। अगर इस पॉइंट का भी देख ले, इस पॉइंट का फोकस कर ले और इस पॉइंट का, ये तीनों पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एच है। वाई कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। पहले यहाँ पर सिर्फ बी आता था, अब के प्लस बी आ जाएगा, और इधर हमारे पास जो इट मीन्स कि ये टॉप मोस्ट वाला पॉइंट जो है वो हमारे पास आ गया एच के प्लस बी, और अगर हम बॉटम मोस्ट वाला पॉइंट देखें तो ये के माइनस बी आ जाएगा हमारे पास। पहले सिर्फ -B होता था अगर ओरिजिन पे सेंटर हो। ओके, अब फोकस की तरफ मूव करते हैं। फोकस में कैसे इफेक्ट करेगा।
पहले फोकस के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो C0 और -C0 हम कहते थे कि ये इतने C डिस्टेंस होता है हमारे पास। अब हमारे पास इसमें क्या चेंजेस आएंगी, y का कोऑर्डिनेट तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो तो फिक्स है कि k ही रहेगा। अब इसमें ये k टाइम्स जो है वो हमारे पास ओरिजिन से अपवर्ड मूव हो गया, तो ये k h जो है ये हमारे पास इसमें जो हम ऐड कर देंगे x कोऑर्डिनेट, ये h था, ये h इधर भी ऐड कर देंगे और इधर से हम लोग h में से ये c जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास दो फोकस आ जाएंगे h प्लस सी कोमा के एंड h माइनस सी कोमा के। अब हम इसको एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। इसकी मैंने आपको सारे पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन जो है वो क्लियरली बता दी है। अब जो सेकंड है जिसमें हमारे पास y एक्सिस मेजर है, इसकी आपने खुद ये चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड करनी है, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में जो है वो ज़रूर पूछ सकते हैं कि इसके ये हमारे पास टॉप मोस्ट और राइट मोस्ट पॉइंट्स और बॉटम मोस्ट और ये फोसाई जो है ये कैसे बने हैं, ये आपने खुद से वेरीफाई करने हैं इसके, जब हमारे पास मेजर एक्सिस y एक्सिस है। अभी हम एक हमने एलिप्स जो है वो कंसीडर कर लिया है, इसको हम देखते हैं कि ये इसमें हमें करना क्या है। इसमें हमें सेंटर फाइंड करना है, कोवर्टिसेस फाइंड करने हैं और कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस हमें फाइंड करना है। हमें ये भी बताना है कि इसमें हमारे पास जो है वो मेजर एक्सिस जो है वो कौन से हैं। सबसे पहले तो इसका सेंटर हम देख लेते हैं कि सेंटर इसका हमारा क्या आ रहा है। अगर हम देखें तो सेंटर ऐसे कोऑर्डिनेट होते हैं जो एक्स में से सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो यहाँ से हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 और 5, तो ये हमारे पास एच और के की वैल्यू आ गई है 2 और 5। अब ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो वहाँ से ही हमें डिसाइड होता है ए और बी जो है ये बेसिकली इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट होते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि इसका मेजर एक्सिस कौन सा है। तो ए स्केयर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ए स्केयर जो है ये हमारे पास 36 के इक्वल है। यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ गया ±6। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास बी स्केयर किसके इक्वल है, वो 16 के इक्वल है, तो वहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है ±4। अब हॉरिजॉन्टल मेजर एक्सिस जो हैं ये हम कैसे हमें पता चला कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है या एक्स एक्सिस जो है वो इसका क्या है, मेजर एक्सिस है। तो इस चीज़ का हमें अंदाज़ा जो है वो ऐसे हुआ है कि क्योंकि हमारे पास ये ए वाला अगर हम देखें तो ये ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, या ए स्केयर हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन बी स्केयर है, और ए स्केयर किसके नीचे पेयर हो रहा है, एक्स वाले कोफिशिएंट के डिनोमिनेटर में, तो इट मीन्स कि एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास मेजर एक्सिस है। ये चीज़ इसने डिसाइड की है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये राइट मोस्ट पॉइंट्स जो हैं ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, जैसे कि हमने इनकी डिटेल्स पीछे डिस्कस की हैं कि ये कैसे हमारे पास पॉइंट्स बनते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसको जो है जस्ट इनकी ये वैल्यूज़ जो हमने वेरीफाई की थी उनकी जगह पे वैल्यूज़ पुट करते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या यही वैल्यूज़ बनती हैं या नहीं। एज की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है और ए की वैल्यू क्या है 6 है, तो 2 + 6 जो है ये सबसे पहले हमें दे देगा 8। नेक्स्ट टर्म जो है वो के वो तो फिक्स है, वो -5 आएगा। इसी तरह लेफ्ट वाले के लिए भी -5 ही आएगा, और दूसरे को हम देख लेते हैं कि h-a। अब h में से ये जो नेगेटिव वाला है कोफिशिएंट वो वाला अब हम यूज़ करेंगे, तो h हमारे पास 2 ही है और उसमें से -6 जब हो रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 6 जो है वो -4 के इक्वल होता है। तो ये फर्स्ट वाले हमारे पास आ गए जो कि क्या है, वर्टिसेस। अब राइट और लेफ्ट पे वर्टिसेस हैं क्योंकि एक्स एक्सिस मेजर था। अब टॉप और बॉटम वाले फाइंड कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या होंगे, को वर्टिसेस होंगे, और उनको कैसे फाइंड करते हैं, ये k + b आ जाता है, k - b, और h तो दोनों में फिक्स है, तो h की वैल्यू जो 2 है वो हमने दोनों में लिख ली है। अब इसमें k + b फाइंड कर लेते हैं। -5 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। इस तरह अगर -5 में हम -4 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9। तो ये हमारे पास आ गए कोवर्टिसेस। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास मेजर एक्सिस क्या बन रहे हैं और इसका हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ रहे हैं सेंटर के। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेंटर है वो आ रहा है, जो हमारे पास एक्स में से टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हैं ये हमारे पास सेंटर आती हैं। तो ये हमारे पास -3 और -1 जो है ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं सेंटर के, जो कि हमारे पास एक्स में से सब्ट्रैक्ट हो रही थी, क्योंकि हम इस प्लस को लिख सकते हैं -3 क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट वाले कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो यहाँ पर अब हमने ए स्केयर और बी स्केयर की वैल्यू देखनी है। वो हमारे पास क्या आ रही है कि ये ए स्केयर जो है ये 25 के इक्वल है, तो इसका जब हम स्केयर रूट लेंगे तो ये ±5 वैल्यू आ रही है। इसी तरह अगर हम बी वाले की बात करें तो ये 81 है, इसका जब हम स्केयर लेते हैं तो ये हमारे पास ±9 आ रहा है। अब यहाँ पर देखें कि ए स्केयर ग्रेटर है या बी स्केयर ग्रेटर है, तो बी स्केयर बेसिकली ग्रेटर आ रहा है हमारे पास ए स्केयर से। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास मेजर एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस है या वाई एक्सिस है, ये इस चीज़ ने हमें डिसाइड कर दिया। अब हम इसके वर्टिसेस
कोवर्टिसेस जो है वो फाइंड कर लेते हैं कि वो कैसे होंगे। जैसे कि इसके फार्मूले हमने अबव डिफाइन किए थे कि ये हमारे पास वर्टिसेस और कोवर्टिसेस की वैल्यूज़ बनती हैं। जस्ट इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और ये वेरीफाई कर लेंगे कि ये पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास किस तरह बन रहे हैं। के की वैल्यू, एज की वैल्यू जो है पहले वर्टिसेस के लिए फ़िक्स है, वो हमारे पास क्या है कि -3 है दोनों में। और के की वैल्यू k+a और k-a करने से हमारे पास के की वैल्यू -4 है, तो ये हमारे पास -4 -6 आ जाएगा। इस तरह h+b और h-b करने से इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास यही वैल्यूज़ जो है वो इनके वर्टिसेस और कोवर्टिसेस की बनेगी। Thanks for watching. Hopefully this video helps you to understand the concept of the ellipse. In our next video we will discuss about the hyperbola and its equation. Thank you. Stay home and stay safe. Allah Hafiz.